Hello everyone, this is Parul Goel, your biology mentor from Infinity Vision. आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं KVPY essay stream paper 2018. As you know all that this KVPY paper consists of two parts, part 1 and part 2. Part 1 has 60 questions and out of 60 questions, 15 questions from each subject, that is physics, chemistry, maths and biology. Same goes with the part 2, but the number of questions are less, that is only 20 questions are there, but the difficulty level is little high. That means out of 20, there are 5 questions from each subject, maths, physics, chemistry and biology. So in this session, we are going to discuss biology questions, part 1, 15, part 2, 5. That means in all, we are going to discuss 20 questions, right? Keep in touch and just a minute. There's one more. Okay. I guess, am I audible to everyone? Okay. So should we start with the paper? Okay. Let's see what is our question number 1. Which of the following molecules is the secondary metabolite? Which of the following molecules is the secondary metabolite? Options are ethanol, lactate, penicillin and citric acid. देखो अब ये क्वेश्चन आपका आया है क्लास 11th chapter biomolecules, chapter number 9 of your NCERT, that is biomolecules, है ना? अब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस को समझने के लिए वी शुड नो व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं एंड secondary metabolites are present. So you should know the differentiate between the two to know what is secondary metabolite and what is primary metabolite. देखो primary metabolites जो होते हैं they are directly involved in the different functions of plant, जैसे for their growth, for their development, for their reproduction and for their normal physiological functions. अब plant के normal physiological functions कौन से होते हैं? Photosynthesis, we know that, है ना? One more, transpiration, then respiration, normal physiological functions. So in these normal physiological functions, what is going to help? Primary metabolites, right? And for their growth, development and reproduction. Now, when it comes to secondary metabolite, what is its use in plants? You know, basically, they are not directly involved in plants, but they help in protection and defense. अब प्लांट्स को किससे चाहिए प्रोटेक्शन, किससे डिफेंस चाहिए, है ना? ये क्वेश्चन अराइज होता है. तो किससे चाहिए प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम द एक्सटर्नल स्ट्रेस एनवायरनमेंट, है ना? किससे चाहिए? एक्सटर्नल स्ट्रेस एनवायरमेंटल कंडीशंस. There are many uses of the secondary metabolites in plant and this is one of them, that it needs protection from the external environmental condition which can be harmful for the plants. Number 2, और क्या यूज है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का? इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, सो वी कैन से इट इज गुड फॉर ह्यूमन वेलफेयर. I'll show you how and what are the secondary and primary metabolites in a minute. But before showing such metabolites, I wanted to tell you that what is the difference between primary and secondary metabolites. अच्छा, जितना भी what I am telling you, please do write in your notebooks. That is going to, it very much provide beneficial to you for the exam. If you discuss, if you learn, if you go for self-study later on, so that is going to provide a very beneficial for you.
So this is why I'm telling you, whatever I'm writing on the screen and explaining you, please do write in your notebooks. So the secondary metabolites are not directly involved. They help in plant protection and the defense for external environmental conditions. It is very good for human welfare also, right? So this is the difference between primary and secondary metabolite. Ethanol is one of the kind of alcohol. It is the one of the kind of alcohol. It is not the secondary metabolite. Lactate, again, a lactic acid, है ना, अगेन ये भी हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है. सिट्रिक एसिड, अगेन नॉट. यस, दिस इज पेनिसिलिन. दिस इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक. This is what? This is one of the antibiotic, which is the secondary metabolite. And our correct option is secondary metabolite, right? See, I show you, just a second. देखो, actually this question is straight away from NCERT, chapter 9, biomolecules. कहीं नहीं जाना आपको. One of you asked me in the last session कि मैम हम KVPY के लिए कौन सी book पढ़ें? Which book you'll refer? So I told you that NCERT is much more than sufficient for KVPY exam. आप देखोगे, I'll show you around 20 questions, 18 questions are just the lines of NCERT, straight away asking from NCERT. तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ NCERT आपकी क्लास 11th बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी है फॉर बायो सेक्शन ऑफ केवीपीवाई एग्जाम, राइट? तो देखो व्हाट इज गिवन इन दिस, दैट व्हाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफाई द फंक्शंस, यहां से देखो, इफ यू नो दैट फंक्शंस एंड प्ले नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल प्रोसेसेस, दिस इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. बात समझ में आ रही है ना? और अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, इनका क्या काम है? दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, फॉर ह्यूमन वेलफेयर. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन जस्ट अ मोमेंट अगो. वेरियस secondary metabolites, that is rubber, drugs, spices, scents, pigments, these are very useful for us. That is why we say that secondary metabolites is going to provide very much very benefits to us. So that is why it is good for the human welfare. And some secondary metabolites have ecological importance, है ना? बहुत सी secondary metabolites का ecological importance है. क्यों है? One of the reason, they are pollinators also. Pollinators means they are necessary for pollination. They attract the pollinators and go for pollination. That is why they have ecological importance as well, right? So secondary metabolites की क्या function है? Number one, good for human welfare, as we have rubber, drugs, spices, scents and different pigments from secondary metabolites. ठीक है? Number two, ecological importance, because it is actually acting as the pollinators, attract the pollinators for pollination. Number three, what I told you, that provides the defense and the protection to the plants for the external stress environmental conditions. So these are various uses of the secondary metabolites, though they are not directly involved in the plant normal physiological processes. This is the chart which I have taken from NCERT class 11th, chapter 9, biomolecules. कहीं नहीं जाना आपको, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है फॉर केवीपीवाई एग्जाम. ऐसे ही आगे हम जैसे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस के लिए. सो आई लेट यू नो दैट द क्वेश्चंस आर स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी. आई गेस तुम लोगों ने लिख लिया होगा, समझ आ गई होगी बात. देखो एक चीज और देखो, दीज आर डिफरेंट, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, these are some secondary metabolites, that is pigments about this, carotenoids, anthocyanins, morphine, codeine. This is again I have taken from NCERT class 11th biology. ये chart very important chart. This is very important chart. Please go through it. And I tell you that every time in KVPY exam in every year, 1 or 2 question is from the topic biomolecule. So I mean, you can think of yourself how much important this topic is. In the last few minutes of this session, I'll also tell you that which topics are utmost important for KVPY exam. तो हम लोग उसको भी मालूम करेंगे कि आपको कौन से topics KVPY के लिए पढ़ने हैं for bio section. ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा NCERT biology class 11th.
Should we move on to the next question? Okay, next question क्या बोलता है हमारा? Lecithin is carbohydrate, phospholipid. This is phospholipid. This is phospholipid. Okay, and a nucleoside or a protein. तो आपको ये बताना है कि लेसिथिन क्या है? कार्ब है, फॉस्फोलिपिड है, न्यूक्लियोसाइड है और प्रोटीन है. देखो सही ऑप्शन इज फॉस्फोलिपिड. लेसिथिन कार्ब्स आप सब जानते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, वन ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट वी इनटेक इन आवर फूड. ठीक है. न्यूक्लियोसाइड, अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो यू मस्ट बी नोइंग दैट डीएनए हैज 3 कंपोनेंट्स. पढ़ा है डीएनए का स्ट्रक्चर, है ना? तो 3 कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? वन इज दी पेंटोज शुगर. नाइट्रोजन बेस. एब्सोल्युटली. सेकंड इज दी नाइट्रोजन. Absolutely. Nitrogenous base. Second is the nitrogenous base and the third is the phosphoric acid. ठीक है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड की. If all the 3 components are present, तब it is nucleoside? No, then it is not a nucleoside. Yes, then it will be. Exactly. Then it will be a nucleotide. Absolutely. And if phosphoric acid is not present there, if it consists of only pentose sugar and the nitrogenous base, then it will be one of the nucleoside. ठीक है. अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं. प्रोटीन्स. We know that proteins are the polymers of the amino acids. It is the one of the again nutrient that we intake in our food. So this is again not a lecithin. Lecithin is one of the phospholipid. Lipids आप सब जानते होंगे. Lipids are the basically the components of the fatty acids and the esters. And if with these 2 things together, if there is addition of the phosphoric acid, that makes phospholipid. Lipid and phosphoric acid together makes phospholipid. है ना? देखो, this is again the picture I have taken from NCERT. NCERT question, class 11th biology. This is lecithin. क्यों है lecithin ये? यहाँ देखो, phosphoric acid is added here with the fatty acid and the glycerol, that is one of the ester. ठीक है. So that is why we say it is phospholipid and lecithin is a phospholipid. And I guess you know, you people have studied the structure of plasma membrane. So phospholipid is one of the main component of the plasma membrane. आप सब ने lipid bilayer structure पढ़ा होगा. Nicholson and Singer mosaic model. I guess you have studied that. है ना? क्लास 10th में ही हम इसको डिस्कस करते हैं. जो स्टूडेंट्स मैथ स्ट्रीम के हैं वो भी ये बात जानते होंगे दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ लिपिड बायलेयर, है ना? एंड द लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. So lecithin is one of the phospholipid. That means lecithin is also one of the component of the plasma membrane because phospholipid is one of the component of plasma membrane. Clear है बात सबको? I guess समझ आ रहा होगा सबको. Yes or no? Yes ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. Yes, the water potential of pure water at standard temperature and atmospheric pressure is A 0, B 0.5, C 1, D 2. अब देखो अगेन ये क्वेश्चन straight away from NCERT. I'll also show you the lines of the NCERT in a minute. There is a topic that is called as transportation in plants. ठीक है, आपकी NCERT में टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, वहां से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है. एंड वाटर पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है. द क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक दिस. ठीक है, तो देखो याद रखना कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज 0. अनडाउटेडली बिल्कुल सही बात, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है. सपोज देयर इज अ बीकर, यू हैव वाटर इन इट, ठीक है, एंड द वाटर कंसिस्ट ऑफ प्योर वाटर. ठीक है, प्योर वाटर है इसमें, सो वाटर पोटेंशियल मस्ट बी कितना होगा? 0. प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0. सपोज व्हाट यू हैव डन,
यू हैव एडेड सम सॉल्यूट ऑन टू इट, आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया इसमें, दैट मीन्स इट बिकम्स नाउ अ सोल्यूशन। क्या बन जाएगा ये? सोल्यूशन बन जाएगा आपका। हमारे पास प्योर वाटर था, हमने इसमें क्या किया? सोल्यूशन ऐड किया, it becomes what? Solution. Solute when added to water, it becomes solution. अब खुद दिमाग लगाओ, when the water potential of a pure water is 0, है ना, तो the pure water, I mean the water potential of a solution is always in negative value. That means when solute is added to water, its water potential decreases. ध्यान रखनी है ये बात। अब क्योंकि वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, आई विल शो यू इन अ मिनट द एनसीईआरटी लाइंस व्हिच इज गिवन इन द बुक, बट बिफोर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर एंड व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन। सो इफ वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर इज 0 and if solutes are added to the pure water, it becomes solution. The water potential of solution decreases and always expressed in negative value. ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं when solute is added to the pure water, water potential decreases or increases. Question ऐसे भी आ सकता है ना? तो it always decreases when some solutes is added to pure water. ये भी question बन सकता है कि whether it has positive value or negative value. Obvious सी चीज है, when water potential decreases, it will always has negative value. ठीक है, देखो आई शो यू वेर एवर वट एनसीईआरटी में आपका ये कहाँ दिया हुआ है। सी दिस लाइन, water potential of pure water at standard temperature which is not under any pressure is taken as 0. ठीक है, एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन बनाया है अगेन। So I mean you people can understand how much important is NCERT for KVPY exam. कहीं नहीं जाना आपको, सिर्फ NCERT पे ध्यान दे लो, KVPY एग्जाम में नंबर बना लोगे अपने। ओके, सो दिस इज अगेन NCERT लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है सबको? डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ NCERT। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, action potential in neurons is generated by rapid influx of, है ना? influx का क्या मतलब होता है? influx का मतलब होता है entry, influx का means entry, है ना? कि action potentials किसके entry से generate होता है? क्लोराइड आइंस, पोटेशियम आइंस, कैल्शियम आइंस और सोडियम आइंस। ऐसा अंदर कौन सा आइंस जाएगा जिसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कौन से आइंस की वजह से एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड? इट इज ऑलवेज सोडियम आइंस। रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस लीड्स टू एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये देखो अगेन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से लाइंस ली है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी ओनली, है ना? ये देखो दिखा रहे हैं यहाँ पर कि सोडियम आइंस का इनफ्लक्स हो रहा है। ये देखो सोडियम आइंस अंदर आ रहे हैं, नहीं है ना? एंड द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। So rapid influx or entry of sodium ions leads to action potential which is called as the nerve impulse. ठीक है, again NCERT question from NCERT। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टेंड्रिल्स आर मॉडिफिकेशन। टेंड्रिल्स आप सब जानते होंगे, इट हेल्प्स द प्लांट फॉर क्लाइंबिंग, इट गिव्स सपोर्ट ऑल्सो। These are the structures which is present in the plants which have weak stems, है ना? So tendrils किसका modification होता है? Stem और leaf, stem only, leaf only and aerial roots only। आज आंसर्स बहुत कम मिल रहे हैं मुझे क्योंकि ये क्लास 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आई गेस मेनी ऑफ यू डिडंट गो थ्रू दैट, दैट इज व्हाई लास्ट सेशन में बहुत आंसर्स मिल रहे थे मुझे। आई वाज एंजॉइंग द सेशन, दैट एवरीबडी नोज दैट। आज आंसर्स नहीं आ रहे। शुभम सेज यस, वन ऑफ द आंसर आई गॉट जस्ट नाउ, दैट इज शुभम सेज स्टेम और लीफ।
सो बिल्कुल सही बात शुभम, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा. दिस इज दी स्टेम और लीफ मॉडिफिकेशन. ठीक है. इट कुड, हम लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ स्टेम का ही मॉडिफिकेशन हो सकता है बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन दी प्लांट्स व्हिच हैव वीक स्टेम, बट नो, yes, it could be leaf modification or could be stem modification. ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात हमें. Tendrils are the structures present in plant for climbing and support, and this could be present in the form of modification of stem or modification of leaf. Clear? देखो आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है इसके बारे में. I have taken from there only. See, this is the diagram given. टेंड्रिल्स का, स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन, कहीं नहीं जाना. मैं बिकॉज आई हैव डेलिबरेटली ब्रिंग द पिक्चर्स फॉर यू फ्रॉम एनसीईआरटी टू शो यू दैट हाउ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर केवीपीवाई एग्जाम. सो अगर आपके पास किताब है उसको पढ़ लो अच्छे से अगर आप केवीपीवाई में स्कोर करना चाहते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. Erythropoietin is produced by heart, kidney, bone marrow, adrenal gland. If you remember in the last session, there was a question, है ना, जिसमें मैंने आपको erythropoietin के बारे में बताया था that this is being produced by the which ऑर्गन. बता सकते हो, लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि इराइथ्रोपोइटिन कौन बनाता है, कौन सा बॉडी ऑर्गन बनाता है. एनी वन ऑफ यू? यस, शुभम इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास इन वन क्वेश्चन दैट इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी. हार्ट नहीं बनाता, बोन मैरो नहीं बनाता. हार्ट, bone marrow and adrenal gland are not the answers. Bone marrow we know is the site of the hemopoiesis. Hemopoiesis means it is the site of hemopoiesis. Hemopoiesis means the formation of the blood cells. Right? तो यहाँ पर आपका erythropoietin नहीं बनता. ठीक है. Adrenal gland again, this is one of the gland present on the upper surface of your kidney. And ये बहुत सारे hormones बनाता है. We know that it is divided into two regions. Cortex, outer region, medulla, inner region. है ना. बहुत commonly आपने name सुने होंगे. Medulla region secretes two hormones, adrenaline and noradrenaline. Last session में भी मैंने आपको बताया था these are stress hormones, emergency hormone. There was a question based on the squirrel something, है ना. There was a squirrel and dog उसके पीछे भाग रहा था. तो what kind of the hormones being secreted and which gland is responsible? So the hormone was adrenal and the gland was adrenal. Adrenal gland is the gland and the hormone was adrenaline. So there was some कुछ देखो repeated question है, थोड़ा सा turn and twist करके आपको दिया हुआ है. अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी आप निकाल दोगे इस क्वेश्चन को within a minute, है ना. तो bone marrow is the site of the formation of the hemopoiesis, and then adrenal gland we know that the stress hormones have been secreted over here. Erythropoietin is produced by kidney, and you know there are some cells which is responsible for the formation of erythropoietin present in kidney, and the cells are JG cells. देखो cells का नाम भी पूछ सकते हैं हमसे, तो हमें cells का नाम भी याद रखना है. JG cells present in kidney responsible for the formation of erythropoietin hormone. ठीक है. JG means juxtaglomerular cells. इसको भी लिख लो, juxtaglomerular cells. ठीक है. तो JG cells present in kidney is responsible for the formation of this erythropoietin. अच्छा, erythropoietin is necessary for the formation of erythropoiesis, for the process of erythropoiesis. Now erythropoiesis, again I have told you in the last session what is erythropoiesis. बता सकता है आप में से कोई what is erythropoiesis? क्या होता है erythropoiesis? No, we have discussed it in the last session. Erythropoiesis is the formation of RBCs. Why RBCs? Because देखो ना RBCs को हम क्या बोलते हैं? It is the erythrocytes, है ना.
तो formation of erythrocytes is erythropoiesis, and the hormone required is erythropoietin, which is produced by the kidney. Which cells? JG cells present in the kidney. I guess समझ आ रहा होगा सबको? You people enjoying the session? Getting information? है ना? देखो ये सारी information, सारा learning बहुत important है KVPY एग्जाम के लिए. दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम लास्ट सेशन में भी मैंने कई बार इस चीज़ को बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, बायोमोलिक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर केवीपीवाई एग्जाम, which comprises of your class 11th. Genetics, yes, it is not in class 11th, it is in class 12th, but बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते, सरफेस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक्स में जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अभी इन दी अपकमिंग सेशंस. But as if now, these topics are important for your KVPY exam. ठीक है? तो yes बेटा, who's this? हाँ बोल. Yes, obviously it is bone marrow. RBCs है, blood cells है, bone marrow में ही बनेगा. But the required hormone is the erythropoietin. देखो ना, हमने यही तो डिस्कस किया अभी. Formation of blood cells in that is hemopoiesis which takes place at bone marrow. यही तो हमने डिस्कस किया अभी. तो ब्लड का मतलब क्या है? ब्लड का मतलब प्लाज्मा एंड दी सेल्स. सेल्स आर व्हाट? दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड दी प्लेटलेट्स, है ना? तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आरबीसीज के बारे में. यस, डेफिनेटली इट अकर्स एट बोन मैरो. ठीक समझा है बेटा आपने? सही समझा है. एंड द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज erythropoietin, एंड बट दैट हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी. ओके बेटा, वेलकम बच्चा. चलिए, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपने लिख लिया स्क्रीन पे वॉट एवर रिटन? आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स? है ना, आपको राइबोसोम के कंपोनेंट्स के बारे में बताना है कि कौन सा फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन राइबोसोम. है ना, राइबोसोम से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं. क्लास 8th में पढ़ते हो, क्लास 9th में पढ़ते हो, देन मॉडिफिकेशंस क्लास 11th में भी पढ़ते हो. तो वी आर वेरी फेमिलियर विद द टॉपिक, है ना. तो the options given are option A RNA, DNA, proteins. Option B RNA, lipids and DNA. Option C RNA and protein. Option D RNA and DNA. तो अब आपको बताना है कि इन चार कॉम्बिनेशंस में से राइबोसोम्स में कौन सी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है. तो देखो, हमें ध्यान रखना है, द कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन राइबोसोम इज RNA एंड प्रोटीन, है ना. If you have studied a little, you must be knowing RNA 3 types के होते हैं. That is mRNA, tRNA and rRNA. ठीक है. mRNA means messenger RNA, tRNA means transfer RNA, rRNA means, what does that mean? It means ribosomal RNA. यानी कि जो आरएनए राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है उसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं. तो राइबोसोमल आरएनए एंड द प्रोटीन्स कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स. ठीक है, कॉम्पोजिशन समझ आ गया. अब यू नो व्हाट, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव सीन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स. कुछ स्पेशलिटीज हैं राइबोसोम्स के, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सो दैट इफ एनी क्वेश्चन कम्स ऑन राइबोसोम्स यू कैन आंसर. सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली. ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, ये बात ध्यान रखनी है हमें. ओके, देन it is present in both these cells. Complexity of the cells के basis पे आप लोग जानते होंगे there are two types of cells, prokaryotic cell and the eukaryotic cell. तो ribosomes are present in both. Prokaryotes में भी present है and eukaryotes में भी present है. ठीक है, but यहाँ पे एक differentiation है. इस differentiation के basis पे एक बात और पता लग जाएगी हमें that there are two types of ribosomes. है ना, 2 टाइप. एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बेटा. तो 70s राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स में.
80s राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स में. ठीक है, so that means there are two types of ribosomes, 70s and 80s. 70s belongs to prokaryotes, 80s belongs to eukaryotes. अब देखो कई बार ना ये S क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी आपसे पूछ लेते हैं. What does S stands for? है ना, तो S stands for Svedberg's unit or sedimentation coefficient. तो हमें ध्यान रखना है व्हाट डज H स्टैंड्स फॉर. ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर दिस. दीज क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. स्मॉलेस्ट सेल है, प्रेजेंट इन बोथ डिफरेंट टाइप्स, 70s 80s. स्वेदबर्ग्स यूनिट है, S स्टैंड्स फॉर स्वेदबर्ग यूनिट. सेडिमेंट कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं इसको. तो ये दीज क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. वन मोर कैन बी फ्रेम्ड. अब देखो ना, राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ER एज वेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो दो टाइप्स के ER होते हैं हमारे पास, स्मूथ ER एंड रफ ER. तो रफ क्यों है? बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ER. So on the basis of the presence and absence of the ribosomes, we can have two different types of ER. That is smooth if it is not present. If it is present, it gives the rough appearance of ER and hence called rough endoplasmic reticulum. है ना, तो ये questions बन सकते हैं. One more you can have, which is the site of ribosome. देखो ribosomes कहाँ पे present होते हैं सेल में. बहुत सारी जगह हैं ऐसी सेल के अंदर जिसमें ribosomes present होते हैं, है ना. एक तो हमने अभी डिस्कस किया, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होंगे. भाई सेल ऑर्गेनली है तो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल प्रेजेंट होगी नहीं होगी? यस और नो? है ना, तो एक साइट तो हमें मिल गया साइटोप्लाज्म. और डिस्कस कर लेते हैं. अभी हमने डिस्कस किया अटैच्ड टू ER, तो दैट इज व्हाई इट इज रफ ER. यहां भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एक और डिस्कस कर लेते हैं. और कहां प्रेजेंट होते हैं? यस, इनसाइड द न्यूक्लियस. बिल्कुल सही बात. वन मोर लोकेशन वी कैन हैव. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, नेम द सेल ऑर्गेनली विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनली. क्वेश्चन आ सकता है अगेन. नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनल. व्हाट इज योर आंसर देन? यस, व्हाट इज योर आंसर देन? Yes, beta? I'm asking, name the cell organelle which is present inside the cell organelle. Ribosomes. Ribosomes are the cell organelle which is present inside the cell organelle. That is mitochondria. ठीक है, तो mitochondria is one of the cell organelle. There is one more, that is chloroplast. एब्सोल्युटली. तो अगर हम इन दोनों की बात करें, यहां भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज सेल ऑर्गेनल इनसाइड दी सेल ऑर्गेनल. ध्यान रखना है हमें बात. तो देखो कितनी सारी साइट्स हैं जहां पे वी कैन फाइंड राइबोसोम्स इनसाइड दी सेल. साइटोप्लाज्म, अटैच्ड टू ER, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द सेल ऑर्गेनल इवन. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं राइबोसोम्स पे जिससे कई सारे क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. वी कैन आंसर द क्वेश्चंस वेरी इजीली. ठीक बात है? यस और नो? समझ आ रहा है सबको? तो फ्रूटफुल लग रहा है सेशन? इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्योंकि इसमें कई KVPY इज एक्चुअली फॉर बोथ स्ट्रीम, मैथ्स एंड बायोलॉजी स्ट्रीम. बायो के स्टूडेंट्स आई गेस थोड़ा बहुत जानते होंगे, अभी जैसे स्टार्टिंग फेज, पर मैथ्स के स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर दैट मच. सो आई गेस फॉर देम इट इज वेरी फ्रूटफुल. येस, फॉर मायो स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज अभी हमने इतना कुछ अभी टॉपिक डिस्कस नहीं किए हैं. लेकिन हाँ, बिकॉज दीज इंफॉर्मेशन आर गोइंग टू आस्क इन KVPY एग्जाम, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. प्लीज डू राइट इन योर नोटबुक्स एंड डू हैव अ ग्लिम्स बिफोर गोइंग टू KVPY एग्जाम. राइट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. यस, which one of the following proteins does not play a role in skeletal muscle contraction? है ना, आप सबने लोअर क्लासेस में
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा. स्केलेटल मसल, है ना, स्केलेटल मसल पढ़ा होगा आपने. कैसी मसल होती है, स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड? स्केलेटल मसल्स इज विच काइंड ऑफ? You must have studied that when viewed from the microscope, this muscles shows striations. So अगर striations shows कर रही है, that means it is what? It is striated muscle, है ना. और ये striated muscle किसकी वजह से, I mean what is the reason because of which these striations are shown on the skeletal muscle? किसकी वजह से striations होती है? Because of the two proteins, है ना. और टू प्रोटीन्स कौन से हैं वो, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन एज वेल, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन. मायोसिन और एक्टिन की वजह से वी हैव स्टाइरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मसल व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो बिल्कुल ये दोनों प्रोटीन हेल्प करेंगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन में. देयर इज वन मोर प्रोटीन विच हेल्प्स, दैट इज ट्रोपोनिन एज वेल. तो आंसर मिल गया हमें. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इट इज विच डज नॉट प्ले इन कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल. तो एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन तीनों ही हेल्प करते हैं स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन की. तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स. दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, बट दिस डज नॉट प्ले इन द स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन. ठीक बात है. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटलाइज्ड बाय द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन स्ट्रेटोस्फेयर. ये सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर इन द लास्ट सेशन इफ यू रिमेंबर. थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा था, बट ओजोन एक ऐसा टॉपिक है, ओजोन लेयर, जिसपे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, नॉट इन केवीपीवाई बट इन नीट एग्जाम, इन एनटीएससी एग्जाम. सो ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो प्लीज गो थ्रू दैट टॉपिक. आपकी एनसीईआरटी में क्लास 11 बायोलॉजी बहुत अच्छे से दिया हुआ है. ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन कैटलाइज्ड होता है यूवी रेज की वजह से. ठीक है, तो दैट इज नंबर बी ऑप्शन. यस, दैट इज बी. हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर. एब्सोल्युटली राइट कुश, बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने. ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है, यूवी रेज क्या करती है, यूवी रेज इट ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स ऑक्सीजन एटम्स, है ना. अब ये ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हो जाता है O2 के साथ एंड देन फॉर्म्स व्हाट, O3, दैट इज ओजोन लेयर. तो इस ऑप्शन से हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. ये ऑप्शन आप लगा सकते हो बिकॉज देयर वाज अ रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन इज नॉट कैटलाइज्ड बाय यूवी रेज. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय यूवी रेज. द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू द ऑक्सीजन एटम्स एंड देन दिस ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ओजोन लेयर, दैट इज ट्राई ऑक्सीजन O3. ठीक बात है. तो ओजोन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है केवीपीवाई एग्जाम के लिए. प्लीज गो थ्रू दैट. आप एनसीईआरटी बायो को देखोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन ऑन दिस टॉपिक मिल जाएगा. किसी सेशन में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक, तो मैं भी आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रिप्सिनोजन. देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th फर्स्ट टॉपिक एनिमल न्यूट्रिशन, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया हुआ है, अगेन एनसीईआरटी. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, इट इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज, इट इज एक्टिवेटेड बाय रेनिन, इट इज एक्टिवेटेड बाय पेप्सिन, और इट डज नॉट नीड एक्टिवेशन. शुभम इज सेइंग इट इज ए. देखते हैं शुभम तुम सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो. मान्या इज सेइंग सी. ओके, लेट्स चेक हु इज करेक्ट, शुभम और मान्या. कुछ इज आल्सो सेइंग ए. देखो अब देखो ना, हर क्वेश्चन में क्या एक्टिवेशन पूछ रहा है ना, कि एक्टिवेशन हो रहा किस चीज से होता है, ट्रिप्सिनोजन का. तो ये तो बात हमें समझ आ गई कि दिस इज इनएक्टिव एंजाइम फ्रॉम द ऑप्शंस, है ना. ये एंजाइम कौन सा है, इनएक्टिव एंजाइम है. इट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड बाय समथिंग. इनएक्टिव एंजाइम दैट इज ट्रिप्सिनोजन, है ना. और इनएक्टिव एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं,
No, Piyush, this is not the answer. C is not the answer. But let's discuss. Then you tell me. I will not tell you the answer. I will only explain it. Then you yourself tell. Inactive enzymes को हम क्या बोलते हैं? Zymogens. कॉपी में नोट करना अपनी नोटबुक में. Inactive form of enzymes are called as zymogens. Means these cannot digest any kind of nutrient. क्योंकि वो तो inactive हैं. वो कैसे digest करेंगे nutrient? It needs their activation. है ना भाई? तो zymogens are the inactive form of enzymes and one of such enzyme is trypsinogen. ट्रिप्सिन किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो अब हम इसको ट्रिप्सिन यानी कि इसकी एक्टिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से बदला जाएगा? दैट इज ऑप्शन ए, enterokinase. Two or three of you has given the option, which is the right option. That is enterokinase की मदद से this trypsinogen is going to convert into active form of enzyme, that is trypsin. ठीक है, तो ये enterokinase कौन बनाता है? थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. Question can be asked. This is being secreted by the intestinal mucosa. है ना, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. अगर आपने हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा है तो देर आर 4 layers प्रेजेंट थ्रू आउट आवर एलिमेंट्री ट्यूब एंड द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा. है ना, तो म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है वो एंटेरोकाइनेज बनाता है. एंड अगर हम इंटेस्टाइनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. Or we know that small intestine is having 3 parts. It is divided into 3 regions. And the first region of the small intestine is duodenum. So basically duodenal mucosa secretes enterokinase which converts inactive trypsinogen into active trypsin for the digestion of, कौन सा न्यूट्रिएंट पे एक्ट करता है ये ट्रिप्सिन? किस पे एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन इज एक्चुअली फॉर विच न्यूट्रिएंट? दीज एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स. सही बात है, प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा. बिल्कुल सही बात पीयूष. सो ट्रिप्सिन, एक हमें ध्यान रखनी है बात कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंटेरोकाइनेज सीक्रीट करता है जिसकी वजह से इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है एक्टिव ट्रिप्सिन में एंड डाइजेस्ट प्रोटीन्स. एंड इट वर्क्स इन, कौन सा, कहां पे एक्ट करता है ये? इट वर्क्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिवेट हो रहा है और वहीं पर इसका काम है, वहीं पे ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को. ठीक है, एक्टिवेटेड बाय पेप्सिन. पेप्सिन कैसे एक्ट करेगा? पेप्सिन तो स्टमक में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल गलत बात. एक्टिवेटेड बाय रेनिन. अगेन रेनिन भी नहीं डाइजेस्ट करेगा, स्टमक में प्रेजेंट होता है. सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक जूस, है ना, डज नॉट नीड एक्टिवेशन. क्यों? हमें जरूरत है इसकी एक्टिवेशन की, तभी तो प्रोटीन्स हमारे डाइजेस्ट होंगे. एंड इवन यू नो व्हाट, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स. इट ऑल्सो एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी है. कैसे काम करता है? यू नो, देयर इज नॉट ओनली ट्रिप्सिनोजन विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर आर मेनी अदर प्रोटीन्स आल्सो प्रेजेंट विच आर इन देयर इनएक्टिव फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल काइमोट्रिप्सिनोजन. फॉर एग्जाम्पल काइमोट्रिप्सिनोजन. So this protein is also, this enzyme is also in its inactive form. Chymotrypsinogen भी अपनी active form में, that is chymotrypsin, is convert with the help of this trypsin only. So basically it does not act only as enzyme, it also act as a catalyst and it catalyzes the formation of the active chymotrypsin. समझ आ रही बात सबको? कि besides enzymatic function, what does the other function is performed by the trypsin? Is it okay to everyone? समझ आ रहा है? Yes or no? Yes, sir. I'm going to ask questions अभी जो पढ़ा रही हूँ, देखूंगी कितना समझ आ रहा है. Yes? पूछूं questions लास्ट सेशन से जो बताया था? चलिए फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर थ्रू स्किन, है ना, स्किन से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता है, क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. देखो ब्लू व्हेल इज अ मैमल, है ना, ये स्किन से रिस्पायर नहीं करेगा. हमें आंसर्स मिल गए हैं, बिल्कुल सही बात, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है. लेट्स चेक वेदर इट इज ओके. प्लैटिपस अगेन इज अ मैमल, बट ये किस टाइप का मैमल है, ओवीपेरस मैमल. यू नो मैमल्स आर जनरली विवीपेरस, बट दिस इज ओवीपेरस मैमल, एक्सेप्शन है. एग लेइंग मैमल है, तो ये भी स्किन से रेस्पायर नहीं करेगा. पीकॉक बिलोंग्स टू द क्लास एव्स, दैट इज बर्ड, है ना, लंग से रेस्पायर करेगी पीकॉक. तो रिमाइंडर इज सैलमेंडर. सैलमेंडर इज वन ऑफ द एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन है और लिजर्ड लाइक अपीरियंस है इसका. कैसा अपीरियंस है, लिजर्ड लाइक अपीरियंस, ठीक है. तो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस रेस्पायर कर सकते हैं स्किन से भी, लंग से भी एंड गिल्स से भी, ठीक है, ध्यान रखना है. तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनता है, सैलमेंडर. बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इवन, आई मीन बिलोंग्स टू ईदर मैमल और एप्स, सो दैट इज नॉट द आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which one of the following human cells lacks a nucleus? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट वन, सब जानते होंगे इसका आंसर आई गेस. कई बार हमने ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे. देखो न्यूट्रोफिल्स, सही अभिषेक, कुश, मान्या, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं. यू पीपल आर लर्निंग द सब्जेक्ट, दैट्स वेरी गुड. देखो न्यूट्रोफिल्स हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, है ना. ये ग्रैन्युलोसाइट है, वन ऑफ द आरबीसी, ग्रैन्युलोसाइट है, वन ऑफ द आरबीसी. मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट है. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैक्स न्यूक्लियस, और जबकि इसके पास तो बहुत सारी लोब्स हैं, एटलीस्ट 3 to 5 मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल्स. तो ये तो आंसर नहीं है हमारा. न्यूरॉन पता है हमें, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जानते हैं हम ये बात अच्छे से. केराटिनोसाइट, केराटिन फॉर्मिंग सेल्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें भी न्यूक्लियस होता है. तो कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स आर ई न्यूक्लिएटेड, दीज आर ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. यस बेटा, in the option it is written mature erythrocyte. So, is there any unmature erythrocyte? हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज व्हेन द सेल्स आर फॉर्म्ड दे हैव डिफरेंट स्टेजेस, है ना. तो एक्चुअली आरबीसी, इरेथ्रोसाइट इज वन ऑफ द आरबीसी, है ना. तो आरबीसीज व्हेन अबाउट टू मैच्योर देन इट लूजेस इट्स न्यूक्लियस. दैट इज व्हाई द ऑप्शन इज गिवन मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स. इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट. व्हेन इरेथ्रोसाइट इज अबाउट टू मैच्योर forming the cells, then it is there is the condition, then it lacks nucleus. That is why in the option it is given mature erythrocyte. Erythrocyte is one of the RBC. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है, ध्यान रखना है. Okay. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. The first enzyme that the food encounters in human digestive system is very simple. Again, animal nutrition. देखो मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ कि yes कुश, you are right बेटा, yes बेटा, शुभांशु, अभिषेक, सही आप लोगों का ऑप्शन है. कई बार हमने इस चीज़ को क्लास में पढ़ा है ना. तो एनिमल न्यूट्रिशन से कितने सारे क्वेश्चंस अभी हद तक हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम इस सेशन में भी देखें और लास्ट सेशन में भी देखें, जैसे एंटेरोकाइनेस वाला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा. This question is from animal nutrition only. The first topic of human physiology in class 11th NCERT biology, है ना. तो animal nutrition is very important topic. बहुत ही simple सा topic है. Just go through it from NCERT और आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, जो आप बहुत इजीली सही मार्क कर सकते हो. बहुत सिंपल सा टॉपिक है. आप इस टॉपिक को खुद से रिलेट कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रिशन, है ना. तो उसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन ही डिस्कस किया हुआ है. The first enzyme that the food encounters in human digestive system is pepsin, trypsin, chymotrypsin, amylase. देखो अभी हमने डिस्कस किया था, ट्रिप्सिन की बात करें और काइमोट्रिप्सिन की बात करें. अभी मैंने आपको बताया था इट वर्क्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हम तो खाना माउथ से खाते हैं, तो बट ऑब्वियसली द एंजाइम इज गोइंग टू रिएक्ट इन योर माउथ ओनली. तो ये तो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गए नहीं हो गए.
अभी एक मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। भाई गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है तो कहाँ काम करेगा, है ना? गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है तो कहाँ काम करेगा? स्टमक में। तो फिर ये भी एनकाउंटर नहीं करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। व्हेन यू इनटेक द बाइट, तो विच एंजाइम इज गोइंग टू एक्ट फर्स्ट? दिस इज द क्वेश्चन इज, है ना? तो द एंजाइम दैट इज गोइंग टू एक्ट इज amylase. एंड विच amylase? yes, which amylase it is present in your mouth? Absolutely, it is salivary amylase, है ना? salivary amylase जो है प्रेजेंट होता है आपके माउथ में, इट इज प्रेजेंट इन सलाइवा, है ना? और सलाइवा कौन बनाता है? अ पेयर, यस, 3 pairs of gland, that is salivary glands, which is present in your mouth. So saliva is present in your mouth, in which this enzyme is present, which act in your mouth and converts कौन सा न्यूट्रिएंट। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इसी क्वेश्चन पे कि अमाइलेज कौन से न्यूट्रिएंट पे एक्ट करता है, विच इज द फर्स्ट न्यूट्रिएंट दैट डाइजेस्टेड व्हेन यू इनटेक योर फूड इन योर बाइट। कौन सा न्यूट्रिएंट होगा? सलाइवरी अमाइलेज किस पे एक्ट करेगा? मालूम है किसी को? कार्बोहाइड्रेट। देखो हमेशा याद रखना कि अमाइलेजेस ऑलवेज डाइजेस्ट कार्ब्स। अमाइलेजेस, चाहे वो सलाइवरी अमाइलेज हो, चाहे वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो, चाहे वो लिंगुअल लाइपेज हो, कोई अमाइलेज हो लिंगुअल, तो कोई भी अमाइलेजेस होंगे दैट विल गोइंग टू एक्ट ऑन कार्ब्स, है ना? लाइपेजेस, LIPASES, तो लाइपेजेस ऑलवेज डाइजेस्ट फैट्स, amylases always digest carbs. So one of the carb that you intake is starch. ठीक है? तो starch हमने खाना खाया, starch is present in your bite, in your food, and the salivary amylase is going to act on it and converts into simple sugar. Which sugar? Maltose. Which sugar? This is maltose. ठीक है? तो सलाइवरी अमाइलेज कार्ब्स पे एक्ट करके माल्टोज में उसे कन्वर्ट करेगा। कार्ब्स इज द कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है? और व्हेन इट डाइजेस्ट इट फॉर्म्स अ सिंपल शुगर विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड समझते हो? डाइसैकेराइड मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 सैकेराइड्स। 2 सैकेराइड्स मीन्स 2 शुगर्स। So maltose 2 sugar से बना हुआ है and the sugar is glucose plus glucose। 2 ग्लूकोज यूनिट से बना है आपका माल्टोज। तो स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया माउथ से एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ सिंपल शुगर दैट इज माल्टोज। ठीक है, ध्यान रखना है ये एंजाइम, आई गेस यू नो दैट एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। तो हमें टेम्परेचर और पीएच का भी ध्यान रखना है। इसका बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सी। ठीक है, बेस्ट पीएच क्या है इसका? यस मैम, यस कुश बेटा, आई डिडंट गेट यू व्हाट यू आस्किंग। पूछ बेटा, क्या पूछ रहा है बच्चे? तो पीएच क्या है? मैमल्स की बात कर रहे हैं बच्चे। ओके ओके कुश, चलिए नेक्स्ट इज, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सी एंड द पीएच इज 6.8। 6 to 7 वेरी कर सकता है बट 6.8 इज द ऑप्टिमम पीएच, यू नो, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज। सो ये भी आपकी किताब एनसीईआरटी में, इट इज ऑल गिवन देयर। सो प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम विच यू आर लर्निंग फॉर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द this enzyme salivary amylase which digest the starch and convert into maltose into the mouth। तो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को पलट करके रिफ्रेम करके आपको दे सकते हैं that which of the following is first digest, which of the following nutrient is first digested in mouth and that is carbs। जरूरी नहीं है carbs ही ऑप्शन में देंगे, आपको स्टार्च भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो यू मस्ट बी नोइंग दैट स्टार्च इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्ब। ठीक बात है? यस, समझ आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। सिंपल सा क्वेश्चन, अगेन सेल। देखो सेल से दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है।
ऑप्शन ए पेरोक्सिसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी एपैरेटस, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे बनता है आपका, आई मीन कहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन्स का? देखो प्रोटीन्स की हम बात करें, प्रोटीन्स लिपिड्स की, है ना। अभी हमने स्मूथ ईआर और रफ ईआर के बारे में जाना था। तो स्मूथ ईआर में आपके बनते हैं व्हाट इज दैट, लिपिड्स, एंड रफ ईआर में बनते हैं आपके प्रोटीन्स, ठीक है। और इनका मॉडिफिकेशंस कहाँ होता है, दैट इज गोल्जी apparatus, बिल्कुल सही बात। Modifications of the lipids, that is in the form of glycolipids, and proteins in the form of glycoproteins, it takes place in the Golgi apparatus, Golgi body of the cell. Very simple सा question है, तो हमें ध्यान रखना है, that is modification is done in the Golgi body और Golgi apparatus, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अगेन ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट, है ना, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। Yes, I got the answer because everybody has done in class 10th. Many of you are correct. I guess everyone is correct. Kush Sanover, absolutely correct, beta. Folding up of the leaves of Mimosa pudica, climbing of tendrils, growth of roots from seeds, growth of pollen tube towards the ovule. तो हम सब जानते हैं मूवमेंट की बात हो रही है। दे आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट, है ना। क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो, इसे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन के पढ़ने के बाद ही टिक मार्क कर दोगे, है ना। मिमोसा पोडिका इज अ टच मी नॉट प्लांट। इसमें डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। आप जब इसको टच करते हो, द लीव्स गेट फोल्डेड, ठीक है। तो फोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑफ मिमोसा पोडिका इज द एग्जांपल ऑफ द नास्टिक मूवमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन, नीड नो एक्सप्लेनेशन। ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। दिस इज फ्रॉम जेनेटिक्स क्लास 12th, ठीक है। If the genotypes of determining the blood groups of a couple are, that is IA-IB and IA-IB, then the probability of their first child having type O blood group, कितना, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा उनके फर्स्ट चाइल्ड का, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। अगर ग्रुप, ब्लड ग्रुप IA-IB और IA-IB, वन ऑफ द टू पेरेंट्स आर गिवन। देखो वैसे ना ऐसे ही पता लगा लोगे। देखो ओ तो अलील है ही नहीं किसी के पास दोनों में से। जब ओ अलील ही नहीं है तो फिर कैसे ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। और चेक कर लेते हैं एक बार, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। दिस इज IA गिवन, IB गिवन ऑफ द वन पेरेंट, अदर पेरेंट इज IA गिवन, IB गिवन, ठीक है। तो अगर हम इसको पुनेट स्क्वायर से सॉल्व करें तो पुनेट स्क्वायर क्या बोलेगा हमारा, दैट इज IA-IB, the gametes formed by the one parent on one side and the other on the other side. तो पुनेट स्क्वायर से भी करके देख लो, IA-IA, IAB, IAB and IBB। सही बात है, ठीक बात है बिल्कुल। तो देखो अब जिसका IAA होगा जीन, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। जिसका IAB है उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। ये केस हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट सेशन आई हैव टोल्ड देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कोडोमिनेंस, है ना, वेरिएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ, कि दोनों ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों डोमिनेंट जीन। तो दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंट एज वेल। नेक्स्ट इज व्हाट इज दैट, IBB, राइट। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B ब्लड ग्रुप। तो किसी भी केस में हमारे पास क्या नहीं है, O ब्लड ग्रुप नहीं है, ठीक है। इवन इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट IA-IO, ऐसे मान लेते हैं, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देती हूं मैं यहां पर। इफ द पेरेंट हैज हैविंग IA-IO, सॉरी दिस इज द रिसेसिव वन, तो इट विल बी रिटन एज स्मॉल I, IA-IO ऐसे मान लेते हैं। अदर इज हैविंग IA एंड IB एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं अभी क्या सिचुएशन होगी। आई टेल यू द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। So this is the gamete produced by one parent is IA and the small IO, ठीक। दूसरे साइड में क्या लिखेंगे हम, IA and the IB, ठीक बात है। अभी देख लेते हैं, that is IAA, IA and small IO. Next is IA and IB, ठीक है। Again a case of codominance,
IB and IO. अब देखो यहाँ पर there is a progeny who is having this IB and IO. ठीक है, अब हमें मालूम है that O is recessive and B is dominant, so B is going to express itself. So इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा B. समझ आ रही बात? Even if one allele is present, but is present in heterozygous condition, then also the progeny will not have blood group O. Why? Because B is dominant, it is going to express itself. O is recessive, will not express itself. So even if one allele present in heterozygous condition in one of the parent, then also there is no blood group present O as in progeny. बात समझ में आ रही है? Yes or no? Yes, sir. तो हम इस केस में भी ए ऑप्शन होगा. Exactly. This is what I'm saying. अगर थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन आ जाएगा, आप ये मत समझना कि बिकॉज O is given here तो O हो सकता है. ऐसे नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हेट्रोजाइगोसिटी है. A will going to dominate and A is going to express itself. So our option is A. That is 0. देखो एक तो आपको ना इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने बना दिया कि फर्स्ट चाइल्ड का क्या, किसी भी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O नहीं होगा. पहली बात. दूसरी बात, हम ये आपसे इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं परसेंटेज ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, है ना, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी किस तरह कितना होगा. तो देखो अगर यहाँ इस कंडीशन को देखें हम, तो हम क्या कह रहे हैं कि ए कितना है हमारा, इट इज ओनली 25%, है ना. देयर आर 4 प्रोजेनीज, तो ए बी इज 50% एंड बी बी इज 25% अगेन. तो क्वेश्चन है इस टाइप से भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप की ये कंडीशन है, उनके अलील्स जीन्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में प्रोजेनीज का कितना, किस टाइप का ब्लड ग्रुप का कितना परसेंटेज होगा. आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं. तो बहुत सिंपल है. पुनेट स्क्वायर में गैमीट्स बनाओ, पुनेट स्क्वायर में उसको रख दो, उसको क्रॉस करा दो एंड देन यू विल फाइंड द प्रोजेनी. और आप देख लो कि अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप. और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, A is there and O is there, because A is dominant, so A is going to express, that means A blood group. Again, B is dominant, O is recessive. If BO is there, B blood group. समझ आ रही है बात सबको? Yes? This is very interesting phenomena. Okay, आगे बढ़ते हैं. चलिए, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपने क्लास 10th में अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को निकाल दोगे. आपने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड प्रोसेस ज़रूर पढ़े हैं क्लास 10th में. तो अगर आप थोड़ा सा जानते हो उन प्रोसेस के बारे में, सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. अ क्रॉस वाज कैरिड आउट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स. ठीक है, हेट्रोजाइगस फॉर 2 पेयर्स जीन्स वाज कैरिड आउट. अब देखो हेट्रोजाइगोसिटी है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना है हमें. Assuming segregation and independent assortment, the number of different genotypes and phenotypes obtained respectively would be, है ना. आपको ये बताने हैं कि F2 जनरेशन में, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखाई है, हम लोग क्या करते हैं, फॉलोइंग मेंडल्स लॉ, व्हाट वी डू, मान्य is saying it is C. Okay बेटा, let's check whether it is C or not. What we do, we start with a pure line. So and 2 pairs of genes की बात की है. Suppose 2 pairs of genes are having AA, BB. That is homozygous condition. Pure line से start करते हैं हमेशा मेंडल्स लॉ में. That is dwarf AA AB, है ना. तो ये गैमीट्स क्या बनाएंगे, AB, and how many gametes are formed? Total is 4. This A will cross with this B also. This will A, this B also. Similarly, this A will formed with this B. This A will this B. तो कितने गैमीट्स बनेंगे, 4 गैमीट्स बनेंगे. Similar over here, AB is going to form the 4 gametes. ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमारे पास प्रोजेनी किस टाइप की आएगी, ऑल हेट्रोजाइगस लाइक दिस. इफ यू हैव स्टडीड डाई हाइब्रिड क्रॉस इन क्लास 10th, आई गेस बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये. ठीक है, तो हमारे पास प्रोजेनी कितनी आएगी, दिस टाइप ऑफ, ऑल द प्रोजेनीज विल बी हैविंग, बिकॉज ए बी इज डोमिनेंट, तो डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे, बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन हाइब्रिड्स बनेंगे. प्योर लाइन से चलेंगे तो हाइब्रिड्स बनेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी. ठीक है, अब देखो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 2 individuals having heterozygous for 2 pair of genes. तो अभी हमें इनकी सेल्फिंग करानी है आगे. ठीक है, हेट्रोजाइगोसिटी निकाल दी हमने, F1 जनरेशन बना दी. F1 जनरेशन में जब हम प्रोजेनीज को क्रॉस ब्रीड कराते हैं, उस प्रोसेस को हम सेल्फिंग बोलते हैं. तो व्हेन वी गो फॉर सेल्फिंग,
अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आगे, अज्यूमिंग सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली वुड बी। आपसे इस F2 जनरेशन का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दे आर आस्किंग, हाउ मेनी फिनोटाइप्स बनेंगे एंड हाउ मेनी जीनोटाइप्स। तो अगर आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन बना है, आप बहुत अच्छे से familiar होगे इन रेशियोज से, 9:3:3:1। ठीक है, ये जब हम क्लास 10th में इस चीज को बताते हैं ना, तो मैं बार बार इवन क्लास 11th 12th में भी बोलती हूँ, इस चीज को बाय हार्ट लर्न कर लो। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन दीज रेशियोज विच इज अ फिनोटिपिक रेशियो। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है, 9th किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन देयर आर टू डोमिनेंट केसेस, बोथ द जीन्स आर रिप्रेजेंट इन देयर डोमिनेंट फॉर्म। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन वन ऑफ द जीन इज डोमिनेंट। 3rd किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन द अदर इज डोमिनेंट। एंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन द 2 आर प्रेजेंट इन रिसेसिव फॉर्म। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप क्या है, हमारे पास 4 टाइप के जीनोटाइप्स हैं, when 2 are dominant, when 1 is dominant, when the other one is dominant and the when 2 are recessive। तो ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो आ गया। अब देखो, अगर हम जीनोटाइप रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो हमारे ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो 4 इज देयर, ऑप्शंस गलत है। ठीक है, तो अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं कि अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, दैट इज जीनोटाइप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप की बात अगर करें तो जीनोटाइप कितने होंगे, देखो आपने रेशियो पढ़ा होगा, दैट इज 9:3:3:1। इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें कि अब हमारा फिनोटाइप कैसा मिलेगा। हमें सिंपल हम कैसे करेंगे फिनोटाइप के लिए, देयर इज अ फॉर्मूला, 2 to the raised to the power 2 and 3 raised to the power 10। these are the formula, actually it is 2 to the power n and it is 3 to the power n। n is the number of the gene pairs which we take into account। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्यों 2 लिख दिया, बिकॉज वी हैव टेकन इनटू अकाउंट द 2 पेयर्स। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पेयर्स ऑफ जीन, दिया हुआ है 2 पेयर ऑफ जीन। तो अगर हम 2 to the raised to the power 2 करेंगे कितना आएगा, दैट इज 4 and 3 raised to the power 2 is 9। so this is actually the genotypic formula and this is phenotypic formula। तो पहले हमसे क्या पूछा है, जीनोटाइप। आप इसमें कंफ्यूजन मत करना, जो पहले पूछा है उसको ऑप्शन लगाओगे। पहले जीनोटाइप पूछा है, जीनोटाइप विल बी 9 and phenotype will be 4। so our answer is 9 and 4 because genotype का फॉर्मूला क्या है, 3 raised to the power 2, that means 9, and the phenotype का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n। n is what, n is the number of gene pairs that taken into account। और यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, we have taken 2 gene pairs into account, so it comes out to be 4। समझ आ रही है बात सबको? तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, 4 और 9 और 9 और 4? यस, हमारा ऑप्शन एब्सोल्युटली, तो हमारा ऑप्शन बनेगा 9 and 4। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए जेनेटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके क्लास 10th में है, बट अ लिटिल अबाउट। तो अगर आपने मोनो डाई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं अच्छे से, तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नो, वेरी फ्रैंकली। तो हमें जेनेटिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है KVPY एग्जाम के लिए, ये बात समझ लो। 2 क्वेश्चंस आते हैं श्योर एंड शॉर्ट। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री अप्लाई करनी है आपको, है ना। केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठा लिया है। इफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन aqueous solution is 0.001 mole, then the pOH of the solution would be। देखो अब इसमें ना एक फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। फॉर्मूला क्या है, दैट इज माइनस लॉग इज इक्वल टू, दैट इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज व्हाट इज pH, है ना। तो ये हमें आंसर मिल गया, बिल्कुल सही शुभम, दिस इज आवर आंसर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है, दैट इज 0.01 m। ठीक है, देन माइनस लॉग इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 10 to the power -3, दैट मीन्स pH इज इक्वल टू 3, है ना। और फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो pH क्या है, हमको मिल गया 3, pOH is equal to 14, तो pOH is equal to 14 minus 3 comes out to be 11।
सो हमारा ऑप्शन क्या है 11. तो इसके लिए थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज ज़रूरी है, एंड आई गेस आप सब जानते होंगे ये चीज़. यू पीपल आर ऑल्सो लर्निंग केमिस्ट्री फॉर KVPY एग्जाम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following vision defects listed in column 1 and 2 and the corrective measures in column 3. थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने आई डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल दोगे. देखो, hypermetropia is the far-sightedness and the correction is convex lens. ये बात समझ लोगे ना, आंसर अपने आप मिल जाएगा. Myopia is near-sightedness and the correction is concave lens. तो फर्स्ट ऑप्शन इज P2B. गलत हो गया. यस अभिषेक, यू आर करेक्ट. सेकेंड इज QI और QINB. बिल्कुल ठीक बात, हमें ऑप्शन मिल गया यहीं पर ही. तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा आई ऑर्गन डिसऑर्डर्स के बारे में आपको जानना है, बट इट इज अ सिंपल क्वेश्चन. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Which one of the following properties causes the plant tendrils to coil around a bamboo stick? Tendrils पे देखो दूसरा क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि tendrils are the modifications of stem or leaf only or stem only. Yes, again this is taken from NCERT class 11th biology. ठीक है, from the morphology of the flowering plants. तो बेसिकली देखो इसमें क्या है, ऑप्शन दिए हुए. टेंड्रिल्स है स्पाइंस. नो, टेंड्रिल्स डोंट हैव स्पाइंस. नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात. द बेस ऑफ टेंड्रिल्स ग्रो फास्टर देन द टिप. नहीं, ऐसा भी नहीं होता. ऑप्शन नंबर सी, पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कंटैक्ट विद द बैम्बू स्टिक ग्रोज एट अ स्लोअर रेट देन द पार्ट अवे फ्रॉम इट. है ना, सपोज ये बैम्बू स्टिक है आपका एंड द tendrils will coil like this. ठीक है, actually it is not like this. There is no distance between the two. It is like this. है ना, ये बिल्कुल इससे joined होता है and then it becomes coiled and then go further. ठीक है, तो question is asking part of the tendril in contact with the bamboo stick grow at a slower rate. Yes, it grows at a slower rate. Reason why? The auxin concentration, auxin is one of the phytohormones which is responsible for the growth of the plant, है ना, and the growth of the parts. तो यहाँ पर जो outer part है ना, यहाँ पर auxin का concentration ज़्यादा होता है as compared to the inner part which is actually touching the bamboo stick. तो ये इसके पास concentration ज़्यादा है, ये आगे बढ़ जाएगा. अब क्योंकि ये आगे बढ़ गया, ये नहीं बढ़ पाया, तो it turns and coils. That is the reason that tendrils are spirally coiled structures. So part of the tendril in contact with the bamboo stick grow as a slower rate because the auxin concentration is less as compared to the part that is away from it. So our answer is option C. ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात. This is actually NCERT line. ये बिल्कुल आपकी NCERT line है, biology class 11th. The tip of the tendrils grows faster than the base. No, it is not that. Not like that. तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी. सो आई गेस तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए समझ आए होंगे अच्छे से. So that was the last question. We have discussed total questions number 20, out of which 15 questions are in part 1 and the last 5 in part 2. And if you have gone through the questions clearly, you must have seen the last 5 questions are little difficult and based on difficult concepts. अगर आपने अच्छे से टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट समझा है तभी आप इन लास्ट 5 क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. डिफिकल्टी लेवल इज लिटिल बिट हाई इफ ऑफ पार्ट 1 एज कंपेयर टू ऑफ पार्ट 2 एज कंपेयर टू पार्ट 1. इसलिए पार्ट 2 का जो मार्कर होता है इट इज 2 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंगली पढ़ना है. बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से अगर रीड कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आप जरूर केवीपीवाई में बायो में अपना स्कोर बना लोगे. आई होप यू ऑल पीपल एंजॉयड. And this video must be fruitful and helpful for your KVPY exam. If you like the video, if it is in any way going to help you in KVPY exam and to have good score, please do like it and share with your friends. That's all for the today's session. Next, we'll meet in the next one. Thank you all.